اللهم كل وليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واحلق دبهم من الجن والإنس ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين ملعونين من الأزل إلى يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون شہنشاہ معظم امام زمانہ کی آمد و سلامتی کے لیے صلوات کریں۔ 9:20 ہو چکے ہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، اسی لیے میں تمہید کے بغیر گفتگو کرنے لگا۔ آج کیونکہ مجلس ہے شہزادہ باب الحوائج علی اصغر پاک کے نام کی، عام طور پہ اس شہزادے کے مصائب پڑھے جاتے ہیں اور شاید ممبر کی تاریخ میں کسی نے اس کے فضائل نہیں پڑھے۔ اگر آپ سب کا دل ہو تو آج میں اس شہزادے کے معصوم کی زبان سے فضائل پڑھنے لگا۔ یہ تمہاری آوازیں تو نہیں چاہ رہی کہ فضائل پڑھے جائیں۔ اسی وقت میں پڑھنے لگا ہوں۔ عام طور پہ مجالس میں کہا کرتا ہوں کہ مجلس اور عزاداری زیادہ وقت کی محتاج نہیں، زیادہ وقت وہ لیتے ہیں جن کے دامن میں فضائل ہوتے ہی نہیں اور وہ لوگوں کا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ آؤ، عنوان گفتگو میری جو تھی وہ عبادت کے بارے میں ہے کہ خالق نے ہمیں عبادت کے لیے بنایا ہے اور معرفت کے بغیر عبادت حرام ہے، گمراہی ہے۔ اس کی ایک حقیقت یہ ہے کہ زمانے کو پتہ ہی نہیں کہ عبادت ہوتی کیا ہے۔ دنیا یہی سمجھتی ہے کہ عبادت ہے نماز، روزہ، حج وغیرہ وغیرہ۔ زمانہ اسی کو عبادت سمجھتا ہے نا۔ بولو، تو یہ عبادت آدم کے زمانے سے واجب ہے، بلکہ آدم سے پہلے سے واجب ہے۔ یہ جو 5 گانا نماز ہم پڑھتے ہیں یہ تو میرے رسول کے زمانے سے ہے، اس سے پہلے عبادت نہیں تھی۔ مزاج ملاؤ، میں یہ وقت ضائع کر رہے ہو۔ اصل عبادت ہے کیا؟ یہ اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ شہزادہ علی اصغر کا بلکہ مولا حسین بادشاہ کے 5 بیٹے ہیں اور 5 بیٹوں کے 3 نام ہیں۔ ایک تو جانتے ہو کہ میرے مولا کے سارے بیٹوں کا نام علی ہے، اور عام طور پہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ مولا نے فرمایا میں نے اپنے بیٹوں کا نام علی اس لیے رکھا کہ مولا کو اپنے بابا علی سے بہت محبت تھی۔ میرا چیلنج ہے زمانے کو، یہ دلیل کامل نہیں۔ کیوں؟ کیا مولا حسن کو اتنی محبت نہیں تھی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے نام رکھنے کی وجہ صرف محبت نہیں ہے،
कोई और हकीकत है। अगर दिल हो तो खोलूं हकीकत। हकीकत ये है कि जमाना समझता था कि अमीर उल मोमिनीन के बाद कोई अली बन नहीं सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जीते रहे ये हाथ जोड़ते हैं कि फज़ाइल में ये नामुमकिन लगता था, लेकिन हुसैन ने जमाने को बताया मैं वो हूँ जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता हूँ। अल्लाह अकबर। हाँ, इसीलिए मेरे मौला ने अपने हर बेटे का नाम अली रखा। जमाने को बता रहा था मैं मोहम्मद हूँ, मेरी आगोश में जो आएगा वो अली होगा। अल्लाह अकबर। आओ, मेरे मौला के हर बेटे का पहले 7 दिन सारे बेटों का नाम अब्दुल्ला है। इसी वजह से मौला का लक़ब है अबा अब्दुल्ला। हर बेटे का पहले नाम अब्दुल्ला, फिर अली असगर अकबर, 3 नाम है और तीनों नामों में राज है जो राज आज तक खुले नहीं। शायद आपने जिंदगी में पहली मर्तबा सुना होगा कि मेरे मौला के हर बेटे का 7 दिन तक नाम अब्दुल्ला था। इनके नाम हमारी तरह नहीं रखे जाते, ये इस्म बामुसम्मा होते हैं। तवज्जो, जमाने को इबादत का पता ही नहीं, अब्दुल्ला नाम क्यों रखा, इस नाम रखने में मकसद क्या है। अब राना तैमूर साहब ने मुझे सिफारिश की है कि आज कुछ वो पढ़ जो पढ़ा ना गया हो, तो अब मेरे साथ रहना है, मैं कुछ पढ़ने लगा हूँ आज। जमाने को पता ही नहीं कि अब्द क्या है, अब्दुल्ला क्या है। लोग समझते हैं हम भी अल्लाह के अब्द हैं, हमारी इतनी औकात ही नहीं कि हम अल्लाह के अब्द बने। अगर हम अली के अब्द बन जाएं, और जो लिया अल्लाह अपने आप को अली का बंदा समझते रहे, उन्होंने सूरज सवा नेज़े पे ले आए, सेवन में शहर पलट दिया। समझ आ रही है? जो चाहे कर ले। अल्लाह का अब्द होता कौन है? नमाजें पढ़ने से अब्द नहीं बनता। मैं पहले मिसाल देता था कि बच्चों को भी समझ आ जाए, फिर मौला का फरमान पढ़ूंगा। अब्द उसको नहीं कहते जो नमाजें पढ़े। अब्द का वैसे तो अब्द के कई मानी हैं, लेकिन जो आसान तरीन माना है, राणा साहब जरा मेरा साथ देना, जो आसान तरीन माना है, जो मेरी कौम के बच्चों को भी पता होगा, वो है गुलाम। ऐसे ही है, बोलो। मैं कहता हूं इनको अल्लाह का अब्द मान लो, सारे मसले हल हो जाएंगे। तवज्जो है, ये कमतरीन माना है, हालांकि इससे ऊपर भी माने हैं। गुलाम क्या करता है? ये तो जानते हो ना, मेरे मौला से पूछा गया, मौला तुझे इमामत पे फख्र है या विलायत पे? मेरे मौला अली ने फरमाया कफा बी फख्रन अन अकून लका अब्दा, मेरे लिए फख्र की बात है मैं तेरा अब्द हूँ। समझ आ रही है? समझ आ रही है? वो और बात है जमाने को अब्द का पता नहीं। जब अपने महबूब को मेराज पे ले गया तो कहा सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही।
रसूल को नहीं, नबी को नहीं, अब्द को। समझ आ रही है? इसका मतलब है उबूदियत ये सबसे अफजल दर्जा है, और कोई भी अब्दुल्ला नहीं बन सकता जैसे ये है। आओ, अब्द करता क्या है? राणा साहब जरा मेरा साथ देना। इस इलाके में फर्ज करो कि राणा तैमूर साहब अकेले हो और कोई बंदा ही ना हो, ये मैं मिसाल देने लगा हूं, और कोई ना हो, तो इनके काम कौन करेगा? बोलो, सीधे बोलो। जब कोई नहीं, खुद करेंगे, सारे काम खुद करेंगे, ऐसे ही है ना? है? अगर ये एक अब्द ले आए, जी जरा हलाल ना दो, अल्लाहु अकबर, फिर क्या होगा? क्या ख्याल है? फिर उस अब्द के काम भी ये करेंगे? नहीं ना, वो अब्द इनके काम करेगा। पहले ये उसे छोटे मोटे काम देंगे, जब वो अच्छी तरह करे जैसे ये चाहते थे, फिर और काम देंगे, जब वो भी उनकी मर्जी के मुताबिक करे, फिर और देंगे, जब उस पे इत्मीनान हो जाए, फिर कहेंगे ये मेरे खजाने की चाबियां हैं। अल्लाहु अकबर। सवाल, ये मेरी जमीनें हैं, सवाल, ये मेरी ममलिकत है, सवाल, फिर कहेंगे सारे मेरे काम तूने करने हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? यानी अब्द वो होता है जो मालिक वाले सारे काम करे। अल्लाहु अकबर। यानी अब्द होता ही वो है जो रब वाले सारे काम करे। जब इन्होंने सारा कुछ अब्द के हवाले कर दिया, अब्द पूछने आए, सरकार आपकी जमीन का कोई गाहक आया है, बेच दूं? कहेंगे मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कितने में बेचूं? मुझसे क्यों पूछते हो? जब मैंने तुझे दे दिया है, फिर तेरी मर्जी है। अभी भी नहीं समझे? जो अब्द होता है उसकी मर्जी है जन्नत मट्टी बना के बेच दे। समझ आ रही है? बहलोल ने जन्नत बेची थी ना, है? जुलेखा को बेची कितने में? 50 दिरहम में। हारून और रशीद 5000 दिनार ले आया। कहता है मेरी बीवी को बेची थी, मुझे भी दे। कहता है नहीं देता। आ रही है? आओ, अब दलील देने लगा। खुदा गवाह है, जमाने को पता ही नहीं अब्द क्या होता है। मेरे छठे मालिक ने फरमाया, और हदीस जो पढ़ने लगा हूँ, ये सरकार खुमैनी ने भी अपनी किताब में लिखी है। मेरे मालिक से किसी ने पूछा, मौला अब्द कौन होता है? वो आखिरी बंदे तक बाहर जो इस घर के फजाइल में शक नहीं करता। कभी इस घर के फजाइल में शक न किया करो, वरना जो शक करता है शैतान उसके मुंह पे थूकता है। समझ आ रही है? हाँ, जिसमें शक की बीमारी नहीं, मैं उससे मुखातब हूँ। मेरे मौला से किसी ने पूछा, मौला उबूदियत क्या है? मेरे मौला ने फरमाया, अल उबूदियत जौहरतुन, कौन हो हर रुबूबिया? उबूदियत वो जौहर है जिसके अंदर रुबूबियत छुपी हुई होती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब समझ आ गई बात कि अब्दुल्ला कौन है? जो रब वाले। और नहीं, अगर दिल नहीं है तो मैं जब रास्ता बदलने लगा हूं। अब्दुल्ला किसको कहते हैं? जो रब वाले सारे काम करे। अब पता चला अली असगर का नाम अब्दुल्ला क्यों है।
اسی کو باب الحوائج کہتے ہیں. اس گھر میں کتنے باب الحوائج ہیں؟ امیر المومنین باب الحوائج، مسلم باب الحوائج، سمجھ آ رہی ہے؟ غازی باب الحوائج، میرا ساتواں مولا باب الحوائج، اور میرے مولا نے فرمایا سب سے بڑا باب الحوائج ہے علی اصغر. یہ سب سے بڑا باب الحوائج ہے. مطلب اگر ان 4 دروازوں سے کچھ نہ مل سکے وہ اس در سے مل جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ سب سے بڑا باب الحوائج ہے نا. بولا یعنی اصغر کے در سے سب کو ملتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو یہ جو میں کہہ رہا ہوں سب کو ملتا ہے یہ میں اور تم ہیں؟ بولا ہم ہیں نبیوں کو بھی. سمجھ آ رہی ہے؟ اصغر کے در سے سب کچھ ملتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اب دل ہو تو اس شہزادے کے 2 جملے اور پڑھو فضائل. بولا پیچھے والا تمہارا بھی دل ہے؟ آؤ جاؤ. علماء عرفان کا متفقہ فیصلہ ہے، اور یہ جملہ میں نے اپنے والد مرحوم محسن ملت عال اللہ مقامہ سے سنا تھا. علامہ نقل مرحوم نے بھی یہ بیان فرمایا کہ شہدائے کربلا میں جو درجے ہیں کہ کون شہید کس درجے پہ ہے، تمام علماء عرفان نے یہی لکھا کہ جو بعد میں شہید ہوا وہ زیادہ بلند درجے والا ہے. پتہ نہیں کس سوچ میں بیٹھے ہو. کیوں؟ علامہ نقل مرحوم کا مشہور جملہ ہے، میں نے اپنے والد مرحوم سے بھی یہ جملہ سنا تھا کہ کربلا کائنات کی واحد نگری ہے جہاں زندہ رہنا مشکل تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ موت آسان تھی تو جو شہید پہلے گیا اس کا دوسرے سے درجہ کم، جو بعد میں گیا اس کا درجہ بلند. کربلا کے شہداء میں میرے مولا حسین کے علاوہ آخری شہید ہے علی اصغر. پتہ نہیں کیا سن رہے ہو؟ اصغر کا اسی لیے صاحبان عرفان نے علی اصغر کو 4 لقب دیے ہیں. علی اصغر ناصر اکبر، ناصر اکبر یعنی غازی سے بڑا ناصر ہے علی اصغر. یہ تمہاری آوازیں مجھے پڑھنے نہیں دے رہی. غازی سے بڑا ہے علی اصغر. نہیں غور نہیں کر رہے. حسین سے بڑی کوئی ذات ہے؟ بولو. تیاری کے مضمون میں تمام علماء ذاکرین کتابوں میں بھی لکھا ہے، میں نے بھی پڑھا تھا اگر یاد ہو. جب مدینے سے چلنے لگے تو حسین نے اصغر کے کان میں کیا کہا تھا؟ تو مدینے رہ گیا تو میری صداقت کی گواہی کون دے گا؟ اصغر ہے حسین کی صداقت کا گواہ. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. حسین کی صداقت کا گواہ. اس کا مطلب ہے حسین کا کلمہ پڑھنے سے پہلے اصغر جیسی دلیل ہونی ضروری ہے. اللہ اکبر. آؤ علی اصغر کون ہے؟ حسین نے اپنے 2 شہزادوں کا کربلا میں خود تعارف کیا ہے. ایک کا تعارف آپ سنتے رہتے ہو، شہزادہ علی اکبر کا. جب میدان میں بھیجنے لگے تو تعارف کیا.
शहजादे अली असगर को भी मैदान में जब लाए तो मेरे मौला हुसैन ने वही लफ्ज दोहराए जो अकबर के तारुफ में दोहराए थे। सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है उसमें। अब चुप रहना मोहब्बत के मजहब में हराम है। अब मैं एक जुमला पढ़ने लगा हूँ, तुम्हारी आवाजें बताएंगी कि अगला जुमला पढ़ना है या नहीं। सिर्फ 2 जुमले मैंने असगर के फजाइल के पढ़ने हैं। पहला पढ़ूंगा, आपने फैसला करना है कि अगला पढ़ना है या नहीं। शहजादे को करबला में अली असगर पाक को मौला हुसैन उठा के लाए, 9 लाख के सामने बुलंद करके कहा, अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाए कौम। अली असगर को दिखा के कहा, फ़इन्नहु अशबहु नास बिरसूलिल्लाह खल्क़न व खुल्क़ा। ऐ अल्लाह, मेरा अली असगर बिल्कुल मेरे नाना जैसा है। अल्लाहु अकबर। साहिब मजालिसुल मुंतज़रीन ने ये जुमला लिखा है, मौला ने फरमाया मेरा असगर आम नहीं, हूबहू मोहम्मद है। हूबहू कह दो जुमला, और पीछे वाला है दिल, कह दो हूबहू मोहम्मद है। मोहम्मद उस वक्त तक बोलता नहीं जब तक वो न बोले। मोहम्मद उस वक्त तक कुछ करता नहीं जब तक वो न चाहे। ये वो करता है जो वो चाहता है। अब पता चला तीर खा के रोया क्यों नहीं, क्योंकि वो रोता नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब ये जो आगे बैठे हो ना, अगले जुमले पे मैं चाहता हूं कि असगर की अजमत को हर हलाल ज़ादा सलाम जरूर करे। अगला जुमला पढ़ने लगा हूं। सरकार ने मौला हुसैन ने अली असगर को फजाइल अभी पढ़ने लगा हूं। अली असगर को करबला में मेरे मौला ने 3 तरह उठाया है। 3 तरह, 2 तरह का बाद में बताऊंगा। पहले फजाइल में एक कहने लगा हूं, ऐसे करके उठाया अली असगर को। पहले करबला के मैदान में मेरे मौला ने ऐसे करके उठाया। तवज्जो, जब मेरे मौला से पूछा गया कि मौला ऐसे क्यों उठाया है, मैं देखता हूं कौन हलाल ज़्यादा चुप रहता है। ऐसे क्यों उठाया? मेरे मौला ने फरमाया, रफ़अल हुसैन अलीयुल असगर कमा रफ़अ रसूलुल्लाह अमीरुल मोमिनीन फी यौमिल क़दीर। हुसैन ने असगर को ऐसे उठाया जैसे मोहम्मद
तो अल्लाह करे अगला मुहर्रम ही ना आए, मुहर्रम से पहले आज़ादारी का वारिस खुद आ जाए। अगर पाकिस्तान में रहा तो तुम्हारी आवाज़ें मुझे मजबूर कर रही हैं कि ज़रूर पढ़ूंगा। इस दफ़ा तो वक्त कम था, मैं वो हक़ाइक़ खोलना चाह रहा था जो 12वें के आने से पहले खुलने ज़रूरी है, ताकि कोई बहाना ना कर सके कि हमें पता नहीं था। और मैंने 19 साल से हर मजलिस में चैलेंज किया है कुल ज़माने के उलमा को, मेरी एक बात गलत साबित कर दो, मैं ज़बान काट दूंगा और उसके बाद कभी मजलिस ही नहीं पढ़ूंगा। लेकिन वो हक़ाइक़ बयान करना ये सादात की जिम्मेदारी है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्यों 12वें में जो आना है, 12वां सिर्फ कुरान लेके नहीं आएगा, हाथ में तलवार लेके आएगा। करीम ने करबला में क्या कहा? ये 9 लाख गदीर के कातिल हैं। अब पता चला करबला क्या है? मेरे मौला हुसैन ने भी पूछा था, फलिमा तक़्तुलूनी, मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो? 9 लाख ने कहा था बुग़्ज़न ले अबी का, तेरे बाबा का बुग़्ज़ है। समझ आ रही है? ये मजलिस में आते हो अली की विलायत के लिए, समझ आ रही है? और अली की विलायत सिर्फ अलीउल वलीउल्लाह पढ़ने का नाम नहीं, अली की विलायत का मतलब यही होता है कि इस घर का हर फर्द हर वो काम कर सकता है जो वो करता है। अल्लाहु अकबर। सबसे बड़ा बाबुल हवाइज है अली असगर। सैकड़ों लोगों ने मेरे जिम्मे दुआएं लगाई हैं, मैं एक एक की दुआ नहीं मांग सकता। आज बाबुल हवाइज की मजलिस है और करीम की शान ये होती है मांगने के बगैर अता करता है। सुना है कि इनके दम से कभी रोता हुआ वापस कोई नहीं गया। अल्लाह अकबर। असगर, हम तेरे दर से मांगने नहीं आए, हम तो तेरे दर पे रोने आए हैं। रोने इसलिए आए हैं कि 6 महीने का शहजादा था। मैं ऐसे ही पढ़ा करता हूँ, मैं ऐसे ही। मैंने कहा 4 लक़ब हैं अली असगर के। सरकार सैयद जाफर ज़मान ने अपनी किताब में ये 4 लक़ब लिखे हैं। मसाइब के लिए सिर्फ ये 4 लफ्ज़ काफ़ी है। अली असगर नासिर अकबर। अल्लाह अकबर। दूसरा लक़ब लिखा है अली असगर। मैं देखता हूँ कौन शिया है और मातम नहीं करता। अली असगर मज़लूम अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तीसरा लक़ब लिखा है अली असगर कतील अकबर। अल्लाह अकबर। चौथे लक़ब पे जो सैयद बैठे हो तुम्हारा मातम जरूर होना चाहिए। चौथा लक़ब दिया है अली असगर शहीद अकबर। ये वैसे ही लक़ब नहीं दिए, करबला का हर शहीद 2 मरतबा ज़िबा हुआ। अली असगर वो शहीद है जो 4 मरतबा शहीद हुआ। अल्लाह अकबर। आओ पहले तुम्हें मैं बताने लगा हूँ कि अली असगर कितना बड़ा बाबुल हवाइज है, क्या कर सकता है। हिंदुस्तान दिल्ली के करीब एक गांव है जिसका नाम है करबला। वहाँ मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। ये फरमाइश की गई है इसलिए पढ़ने लगा हूँ, बड़ी जल्दी करने लगा हूँ। हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान शिया भी रहते हैं। 10 मुहर्रम के दिन वहाँ रिवाज है कि जुलूस जब जाता है वो 72 ताबूत लेके जाता है। और जब वहाँ करबला पहुँचते हैं, एक जगह का नाम है
کربلا، وہاں وہ سارے تابوت دفن کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک شیعہ سید مومن تھا، اس کا ہندو دوست تھا، اس کی اولاد نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ علی اصغر کے جھولے کی منت مان، اولاد نہ ہوئی تو میں سید ہی نہیں۔ سید ایسے ہوتے ہیں۔ ہندو نے منت مانی، مولا نے اسے اولاد عطا کی۔ اگلے سال اس نے جھولا لے کے جانا تھا اور کربلا میں دفن کرنا تھا۔ اللہ اکبر، میرا اشارہ سمجھنا۔ 10 محرم کا جلوس چل پڑا، وہ ہندو بھی جلوس کے پیچھے پیچھے تھا، لیکن اس نے جھولا نہیں اٹھایا ہوا تھا، اس نے اپنا بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ یا علی اصغر، مجھے ہمت دے میں یہ جملہ پڑھ سکوں۔ خدا گواہ ہے کبھی بھی میں خود یہ جملہ نہیں پڑھ سکا آج تک۔ شہزادہ تو خود مجھے ہمت دے۔ بچہ اس نے اپنا اٹھایا ہوا۔ جب 72 تابوت دفن ہو گئے، اس نے بھی قبر کھودی اور قبر میں اس نے اپنا بچہ رکھ دیا۔ مومنوں نے اسے روکا، ایسا نہ کر، یہ بچہ زندہ ہے، اسے دفن نہ کر، تیری منت تھی جھولے کی۔ کہتا ہے میری خواہش تھی کہ مجھے اولاد مل جائے، علی اصغر نے دے دی۔ میں کربلا میں نہیں تھا، اگر ہوتا تو اصغر ذبح نہ ہوتا، میں اپنے بچے کو لے جاتا۔ آج میں اپنے بیٹے کو اصغر میں قربان کرنے لگا ہوں۔ لوگوں نے اسے کہا حرام ہے، کہتا ہے تمہارے اسلام میں حرام ہے، میرے مذہب محبت میں حرام نہیں۔ کسی کے آنے سے پہلے اس نے دفن کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واپس آ گیا، گھر پہنچا، ہندو کی برادری کو پتا چلا کہ اس نے اپنا بچہ زندہ دفن کر دیا۔ اس کی برادری والے تلواریں لے کے آئے اسے قتل کرنے کے لیے۔ دروازے کے باہر ہندو برادری تلواریں لے کے کھڑی ہوگی، اور تو نے ہمارا بچہ مار دیا ہے، تجھے ہم قتل کریں گے۔ مومنوں کو پتا چلا، اسے بچانے کے لیے آئے۔ ابھی وہ گھر کے اندر نہیں گیا، باہر ہی کھڑا تھا۔ ادھر ہندو تلواریں لے کے آئے، ادھر مومن اسے بچانے آئے۔ شور بلند ہوا، اس کی زوجہ باہر آئی، میرے شوہر کو کیوں قتل کر رہے ہو؟ اس نے تمہارا بچہ قتل کر دیا ہے، زندہ دفن کر دیا ہے۔ کہتی ہے تمہیں کس نے کہا کہ میرا بچہ مر گیا؟ گھر میں گئی، بیٹا اٹھا کے باہر لے آئی۔ ہندو پریشان ہو گیا، مومن پریشان، ہمارے سامنے تو نے دفن کیا تھا۔ کہتی ہے مجھے نہیں پتا، جب شام ہوئی ہے نا، دروازے پہ دستک ہوئی، جس نے منہ پہ ماتم کرنا ہے۔ کہتی ہے ایک 5 سال کی شہزادی تھی جس نے میرے بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ حوصلہ، 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 حوصلہ۔ اٹھنا کسی نے نہیں، بیٹھ کے پرسا دو، منہ پہ پرسا، رخساروں پہ ماتم کرو۔ کہتی ہے 5 سال کی بچی میرے بیٹے کو اٹھا کے لے آئی، لا کے کہتی ہے اے ہندو کی زوجہ، میں تیری جنت کی ضامن ہوں، ہم نے تیری قربانی کو قبول کیا، لیکن ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ لے اپنے بچے کو، میرا اصغر تو زمین کربلا پہ تڑپتا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روتے بھی آؤ، دعا مانگتے آؤ، ان کا بدلہ لینے والا جلدی آئے۔ آج میں نے منت کی ہے، کسی نے اٹھنا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، ہو نہیں سکتا کہ علی اصغر کے مسائب بڑھے جائیں اور شام والی معصومہ نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ علی اصغر وہ مظلوم ہے۔ کربلا کے بعد ہر شہید کی ماں سائے میں بیٹھ گئی۔ اللہ جانے علی اصغر پہ کیسا ظلم ہوا، جب تک ماں زندہ رہی، دھوپ میں بیٹھی رہی، رو رو کے کہتی اصغر مجھے نہیں بھولتا، تیرا
सुनने के लिए असगर की माँ जरूर आती है। मेरे क़िबला काबा पढ़ा करते थे, शहजादे को ले आया मैदान में, अल्लाह अकबर, पहले ऐसे उठाया, फिर शहजादे को ऐसे उठाया, अल्लाह अकबर, ऐसे उठा के कहा, ओ मलूनो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। अगर तुम समझते हो कि मैं कोई जुर्म हुआ है, मैंने किया है, बताओ इस 6 महीने के बच्चे का क्या जुर्म है? सुन सकोगे? मजलूम ने कहा 3 दिन का प्यासा है। अल्लाह अकबर, अब इसकी जबान भी नहीं हिल रही। मलून कहते हैं पानी खुद पीना चाहता है, बहाना असगर का कर रहा है। वहां हुसैन ने कहा, असगर मेरी सदाकत की गवाही दे, जमाने को बता। अब खतीब आले मोहम्मद अजहर हसन जैदी साहब मरहूम पढ़ा करते थे कि अली असगर है नासिर अकबर। असगर ने नन्ही सी जबान को होंठ पे फेरा, यही असगर का तीर था। 9 लाख को मुखातब होके कहा, या अहलन कूफा बशार, अना अत्शानुन मिन सलासत अय्याम। ओ कूफे का बहन दो, मैं 3 दिन का प्यासा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, पुलसा दो, अली असगर का सारे पुलसा दो, लेकिन बैठ के उठना किसी ने नहीं है। रो के कहा, कमीनों में 3 दिन का प्यासा हूँ, 3 दिन से मैंने दूध नहीं पिया, मैंने पानी नहीं पिया। ईमान से मुझे बताओ, तुम में देहाती लोग बैठे हैं, ये मेरी माँ बहन का हिस्से का मसाइब है। जो मेरी माँ बहन जहाँ भी बैठी हो, डरना नहीं, पुलिस तुम्हारी हिफाजत के लिए मौजूद है, तुम्हारे नौजवान तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं, यहाँ तुम्हारा बच्चा गुम नहीं होगा। मैं सैयद होके एक मिन्नत कर रहा हूँ, जब तक मैं अली असगर की शहादत पढ़ूं, अगर तेरी गोद में कोई बच्चा है, अपने बच्चे को जमीन पर रख दे, झोली में ना रखना। कहीं ऐसा ना हो असगर कहे तेरा बच्चा तो झोली में, असगर की माँ कहे मेरा बच्चा जमीन करबला पे। मातम करते हैं, मज़ों में मातम जायज़ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन मेरी माँ बहन, मेरी एक बात को आप समझोगी, इस जुमले में मैंने अपनी माँ बहनों का मातम देखा हुआ है। मुझे ईमान से बताओ, 6 महीने के बच्चे को कितने पानी की जरूरत होती है? माँ गिलास में नहीं पिलाती, माँ चम्मच से पानी नहीं पिलाती, बल्कि माँ चुल्लू में पानी लेती है, अपनी उंगली पानी में डालती है, बच्चे के मुंह में लगा देती है, बच्चे की प्यास खत्म हो जाती है। जितना मुंह में मातम करो कम है। नहरे फुरात बह रही थी, नजस जानवर पानी पी रहे थे, असगर के लिए एक कतरा पानी का। रोते भी आओ, दुआ मांगते आओ, इनका बदला लेने वाला है। मैं और तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, माँ हुसैन की तुम्हें इस रोने का अजर जरूर देगा। तुम्हारे रोने से असगर की बहन को सुकून मिला होगा। यकीन कर लो, असगर की बहन ने हाथ उठा के जरूर कहती होगी, ऐ अल्लाह गवाह रहना, जब तक ये रोने वाले जन्नत नहीं जाएंगे, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हर बंदे की आंख में आंसू है, छोटे छोटे बच्चे आंसुओं से रो रहे हैं, और लोग हमसे पूछते हो क्यों रोते हो? तुम्हारे बच्चे गलियों में खेलते हैं, आखिर क्या गुर्बत है मोहब्बत के घर आने की? हमारे ये छोटे छोटे बच्चे मातम भी कर रहे हैं, आंसुओं से रो रहे हैं, ये हुसैन को कह रहे हैं, हुसैन तेरे बच्चों का बड़ा अरमान है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अकबर, मरहबा।
इतने बड़े कमीने थे, शकीउल कल्ब थे, उनके दिलों में रहम नहीं था, लेकिन अस्कर के जहाद ने हर शख्स को मजबूर कर दिया था। और कमीने, तुमने तो हमें कहा था मर्दों से जंग है, इस बच्चे का क्या जुर्म है? हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। जब देखा ना इनकलाब आने वाला है, उमर साद अल्लाह इस मलून पे लानत करे, हुरमल को कहता है इक्ता कलाम अल हुसैन। मैं अपने लफ्जों में इसका तर्जुमा यूं किया करता हूँ, मेरा इशारा समझ जाओ तो मातम के लिए काफी है। उमर साद ने हुरमल से कहा इस बच्चे को पानी पिला। ऐसे ही पढ़ूंगा, कहते हैं इस बच्चे को पानी पिला। हुरमल ने देखा हुसैन का बेटा है, बहुत शान वाला है, कहते हैं जाम भी उसकी शान के मुताबिक होना चाहिए। करबला का सबसे बड़ा जाम उठा के लाया। मैं ऐसे ही पढ़ा करता हूँ। मलऊन ने तीरे से शोभा उठाया, आगे बढ़ा। मैं ऐसे ही पढ़ा करता हूँ। मलऊन ने कहा जितनी शान वाला है, इतनी इज्जत से इसे पानी पिलाओ। मलऊन झुका, घुटना जोड़ा जमीन पे घुटना जोड़ के मलऊन ने तीर कमान में डाला। जिसने मातम करना है, तीर कमान में डाला, लेकिन हाथ काम गए। अली असगर जैसा नासिर जो था,